اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ جون 1171 کا وہ دن مصر کی گرمی سے جل رہا تھا، جس دن خلیفہ العاضد کے قاصد نے آ کر صلاح الدین ایوبی کو پیغام دیا کہ خلیفہ یاد فرما رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کے تیور بدل گئے۔ اس نے قاصد سے کہا، خلیفہ کو بعد السلام کہنا کہ کوئی بہت ضروری کام ہے تو بتا دیں، میں آ جاؤں گا۔ اس وقت مجھے ذرا سی بھی فرصت نہیں۔ انہیں یہ بھی کہنا کہ میرے سامنے جو کام پڑے ہیں وہ حضور کے دربار میں حاضری دینے کی نسبت زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ قاصد چلا گیا اور سلطان ایوبی بے چینی میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ فاطمی خلافت کا دور تھا۔ مصر میں اس خلافت کا خلیفہ العاضد تھا۔ اس دور کا خلیفہ بادشاہ ہوتا تھا۔ جمعے کے خطبے میں ہر مسجد میں خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کا نام لیا جاتا۔ عیش و عشرت کے سوا ان لوگوں کے پاس کوئی کام نہ تھا۔ اگر نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نہ ہوتے یا وہ بھی دوسرے عمراء وزراء کی طرح خوشامدی اور ایمان فروش ہوتے تو اس دور کے خلیفوں نے تو سلطنت اسلامیہ کو بیچ کھایا تھا۔ العاضد ایسا ہی ایک خلیفہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی مصر میں گورنر بن کر آیا تو ابتدا میں خلیفہ نے اسے کئی بار بلایا۔ سلطان ایوبی سمجھ گیا کہ خلیفہ اسے صرف اس لیے بلاتا ہے کہ اسے یہ احساس رہے کہ حاکم ایوبی نہیں خلیفہ ہے۔ وہ سلطان ایوبی کا احترام کرتا تھا، اسے اپنے ساتھ بٹھاتا تھا، مگر اس کا انداز شاہانہ اور لب و لہجہ آمرانہ ہوتا۔ اس نے سلطان ایوبی کو جب بھی بلایا بلا مقصد بلایا اور رخصت کر دیا۔ صلیبیوں کو بحیرہ روم میں شکست دے کر اور سوڈانی فوج کی بغاوت کو ختم کر کے صلاح الدین ایوبی نے خلیفہ کو ٹالنا شروع کر دیا۔ اس نے خلیفہ کے محل میں جو شان و شوکت دیکھی تھی اس نے اس کے سینے میں آگ لگا رکھی تھی۔ محل میں زر و جواہرات کا یہ عالم تھا کہ کھانے پینے کے برتن سونے کے تھے، شراب کی سراہی اور پیالوں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حرم لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا، ان میں عربی، مصری، مراکشی، سوڈانی اور ترک لڑکیوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی لڑکیاں بھی تھیں۔ یہ اس قوم کا خلیفہ تھا جسے ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلانا تھا اور جسے دنیا کفر کی مہیب جنگی قوت کا سامنا تھا۔ سلطان ایوبی کو خلیفہ کی کچھ اور باتیں بھی کھائے جا رہی تھیں۔ ایک یہ کہ خلیفہ کا ذاتی حفاظتی دستہ سوڈانی حبشیوں اور قبائلیوں کا تھا جن کی وفاداری مشکوک تھی۔ دوسرے یہ کہ خلیفہ کے دربار میں سوڈان کی باغی اور برطرف کی ہوئی فوج کے کماندار اور نائب سالار خصوصی حیثیت کے مالک تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی ہدایت پر علی بن سفیان نے قصر خلافت میں نوکروں اور اندر کے دیگر کام کرنے والوں کے بھیس میں اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ خلیفہ کے حرم کی 2 عورتوں کو بھی اعتماد میں لے کر جاسوسی کے فرائض سونپے گئے تھے۔ ان جاسوسوں کی اطلاعوں کے مطابق خلیفہ سوڈانی کمانداروں کے زیر اثر تھا۔ وہ 60-65 سال کی عمر کا بوڑھا تھا، لیکن خوبصورت عورتوں کی محفل میں خوش رہتا۔ اس کی اسی کمزوری سے صلاح الدین ایوبی کے مخالفین فائدہ اٹھا رہے تھے۔ 1171 کے دوسرے تیسرے مہینے میں خلیفہ کے حرم میں ایک جوان اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کا اضافہ ہوا۔ حرم کی جاسوس عورتوں نے علی بن سفیان کو بتایا تھا کہ 3-4 آدمی آئے تھے جو عربی لباس میں تھے۔ وہ اس لڑکی کو لائے تھے۔ ان کے پاس بہت سے تحفے بھی تھے۔ لڑکی بھی تحفے کے طور پر آئی تھی۔ اس کا نام ارارہ تھا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ خلیفہ العاضد پر اس نے جادو سا کر دیا تھا۔ بہت ہی چالاک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ سلطان ایوبی کو قصر خلافت کی ان تمام خرافات کا علم تھا، مگر حکومت پر اس کی گرفت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ وہ خلیفہ کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا، اس سے پہلے کہ گورنر اور امیر خلیفہ کے آگے جھکے رہتے۔ اس لیے مصر بغاوتوں کی سرزمین بن گیا تھا۔ وہاں اسلامی خلافت تو تھی مگر اسلام کا پرچم سرنگوں ہوتا جا رہا تھا۔ فوج سلطنت اسلامیہ کی تھی مگر سوڈانی جرنیل شہری حکومت کی باغ ڈور ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور ان کا رابطہ صلیبیوں کے ساتھ تھا۔ انہی کی بدولت قاہرہ اور سکندریہ میں عیسائی کنبے آباد ہونے لگے۔ ان میں جاسوس بھی تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے سوڈانی فوج کو تو ٹھکانے لگا دیا تھا، لیکن ابھی چند ایک سوڈانی جرنیل موجود تھے جو کسی بھی وقت خطرہ بن کر ابھر سکتے تھے۔ انہوں نے قصر خلافت میں اثر و رسوخ پیدا کر رکھا تھا۔ سلطان ایوبی ابھی خلافت کی تعیش پرست گدی کو اس ڈر سے نہیں چھیڑنا چاہتا تھا کہ خلافت کے متعلق کچھ لوگ جذباتی تھے اور کچھ حامی تھے۔ ان میں خوشامدیوں کے ٹولوں کی اکثریت تھی۔ اس اکثریت میں وہ اعلیٰ حکام بھی تھے
जो मिस्र की अमारत की तवक्को लगाए बैठे थे, मगर ये हैसियत सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिल गई। सुल्तान अय्यूबी इन हालात में जहां मुल्क जासूसों और गद्दारों से भरा पड़ा था और सलीबियों के जवाबी हमले का खतरा भी था, उन आला और अदना हुकाम को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था जो खिलाफत के परवरदा थे। मगर जून 1171 के एक रोज जब खलीफा ने उसे बुलाया तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने दरबान से कहा, अली बिन सुफियान, बहाउद्दीन शद्दाद, ईसा अल हकारी फकीह और अल नासिर को मेरे पास भेज दो जल्दी। ये चारों सुल्तान अय्यूबी के खुसूसी मुशीर और मोतमिद थे। सुल्तान अय्यूबी ने उन्हें कहा, अभी अभी खलीफा का कासिद मुझे बुलाने आया था, मैंने जाने से इनकार कर दिया है। मैंने आपको ये बताने और राय लेने के लिए बुलाया है कि मैं जुम्मे के खुतबे से खलीफा का नाम निकलवा रहा हूँ। शद्दाद ने कहा, ये इक़दाम अभी क़ब्ल अज़ वक्त होगा। खलीफा को लोग पैगंबर समझते हैं, राय आमा हमारे खिलाफ हो जाएगी। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, अभी तो लोग उसे पैगंबर समझते हैं, थोड़े ही अरसे के बाद वो उसे खुदा समझने लगेंगे। उसे पैगंबरी और खुदाई देने वाले हम लोग हैं जो खुतबे में उसका नाम खुदा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लेते हैं। क्यों ईसा फकीह, आप क्या मशवरा देते हैं? ईसा अल हकारी फकीह ने जवाब दिया, मैं आपकी तायद करता हूँ। कोई भी मुसलमान खुतबे में किसी इंसान का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, इंसान भी ऐसा जो शराब, औरत और हर तरह के गुनाह का शैदाई है। ये अलग बात है कि सदियों से खलीफा को पैगंबरों का दर्जा दिया जा रहा है। मैं चूंकि शहरी और मजहबी उमूर का जिम्मेदार हूँ, इसलिए ये नहीं बता सकता कि सियासी और फौजी लिहाज से आपके फैसले का रद्द अमल क्या होगा। बहाउद्दीन शद्दाद ने कहा, रद्द अमल शदीद होगा और हमारे खिलाफ होगा। उसके बावजूद मैं यही मशवरा दूंगा कि ये बिद्दत खत्म होनी चाहिए, या खलीफा को पक्का मुसलमान बनाकर लोगों के सामने लाया जाए, जो मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। अली बिन सुफियान ने कहा, राय आम्मा को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। अली बिन सुफियान जासूसी और सुराग रसानी के शोबे का सरबराह था। उसने मुल्क के अंदर जासूसों और मुखबरों का जाल बिछा रखा था। उसने कहा, आम लोगों ने खलीफा की कभी सूरत नहीं देखी, वो अल आजिद के नाम से नहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से वाकिफ हैं। मेरे महकमे की मुसद्दिका इत्तलात ने मुझे यकीन दिलाया है कि आपके 2 साला दौरे अमारत में लोगों की ऐसी जरूरियात पूरी हो गई हैं जिनके मुताल्लिक उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। शहर में ऐसे मतब नहीं थे जहां मरीजों को दाखिल करके इलाज किया जा सकता। लोग मामूली बीमारी से मर जाते थे। अब सरकारी मतब खोल दिए गए हैं, दर्सगाहें भी खोल दी गई हैं, ताजिरों और दुकानदारों की लूट खसूट खत्म हो गए हैं, जराइम भी कम हो गए हैं और अब लोग अपनी मुश्किलात और फरियादें आप तक बराह रास्त पहुंचा सकते हैं। आपके यहाँ आने से पहले लोग सरकारी एहलकारों और फौजियों से खौफजदा रहते थे। आपने उनके हुकूक बता दिए हैं और वो अपने आप को मुल्क मिल्लत का हिस्सा समझने लगे हैं। खिलाफत से उन्हें बेइंसाफी और बेरहमी के सिवा कुछ नहीं मिला। आपने उन्हें अदलो इंसाफ और वक़ार दिया है। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि कौम खिलाफत की बजाय अमारत के फैसले को कबूल करेगी। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैंने कौम को अदलो इंसाफ और वक़ार दिया है या नहीं, मैंने कौम के हुकूक उसे दिए हैं या नहीं, मैं नहीं जानता। मैं कौम को एक इंतहाई बेहुदा रिवायत नहीं देना चाहता। मैं कौम को शिर्क और कुफ्र नहीं देना चाहता। जरूरी हो गया है कि इस रिवायत को तोड़कर माजी के कूड़े करकट में फेंक दिया जाए जो मजहब का हिस्सा बन गई है। अगर ये रिवायत कायम रही तो ये भी हो सकता है कि कल परसों मैं भी अपना नाम खुतबे में शामिल कर दूं। दिए से दिया जलता है, लेकिन मैं इस दिए को बुझा देना चाहता हूं जो शिर्क की रोशनी को आगे चला रहा है। कसर खिलाफत बदकारी का अड्डा बना हुआ है। खलीफा उस रात भी शराब पिए हुए हरम के हुस्न में बदमस्त पड़ा था जिस रात सूडानी फौज ने हम पर हमला किया। अगर मेरी चाल नाकाम हो जाती तो मिस्र से इस्लाम का परचम उतर जाता। जब अल्लाह के सिपाही शहीद हो रहे थे उस वक्त भी खलीफा शराब पिए हुए था। मैं उसे अहकाम के मुताबिक ये बताने गया कि सल्तनत पर क्या तूफान आया था और हमारी फौज ने उसका दमखम किस तरह तोड़ा है, तो उसने मस्त सांड की तरह झूम कर कहा था, शाबाश, हम बहुत खुश हुए। हम तुम्हारे बाप को खुसूसी कासिद के हाथ मुबारकबाद और इनाम भेजेंगे। मैंने उसे कहा कि या खलीफतुल मुस्लिमीन, मैंने अपना फर्ज अदा किया है। मैंने ये फर्ज अपने बाप की खुशनूदी के लिए नहीं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी के लिए अदा किया है। उस बुढ़े खलीफा ने कहा, सलाहुद्दीन, तुम अभी बच्चे हो मगर काम तुमने बड़ों वाला कर दिखाया है। उसने मेरे साथ इस तरह बात की थी जैसे वो मुझे अपना गुलाम और अपने हुक्म का पाबंद समझता है। बेदीन इंसान कौमी खजाने के लिए सफेद हाथी बना हुआ है। सुल्तान अय्यूबी ने एक खत निकाल कर सबको दिखाया।
फिर कहा 6-7 दिन गुजरे, नूरुद्दीन जंगी ने मुझे ये पैगाम भेजा है। उन्होंने लिखा है कि खिलाफत 3 हिस्सों में बट गई है। बगदाद की मरकजी खिलाफत का दोनों मातहत खलीफों पर असर खत्म हो चुका है। आप ये ख्याल रखें कि मिस्र का खलीफा खुद मुख्तार हाकिम न बन जाए। वो सूडानियों और सलीबियों से भी साजबाज करने से गुरेज नहीं करेगा। मैं सोच रहा हूँ कि खिलाफत सिर्फ बगदाद में रहे और ज़ेली खलीफे खत्म कर दिए जाएं, लेकिन मैं डरता हूँ कि उन लोगों ने हमारे खिलाफ साजिशें तैयार कर रखी हैं। अगर आप मिस्र के खलीफा की बादशाही उसके महल के अंदर ही महदूद रखने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको फौजी और माली इमदाद दूंगा। एहतियात की भी जरूरत है क्योंकि मिस्र के अंदरूनी हालात ठीक नहीं। मिस्र में एक बगावत और भी होगी। सूडानियों पर कड़ी नजर रखें। सुल्तान अयूबी ने खत पढ़कर कहा, इसमें क्या शक है कि खिलाफत सफेद हाथी है। क्या आप देखते नहीं कि खलीफा अल आजिद दौरे पर निकलता है तो आपकी आधी फौज उसकी हिफाजत के लिए हर तरफ फैला दी जाती है। लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो खलीफा के रास्ते में चादरें और कालीन बिछाएं। खलीफा का हिफाजती दस्ता दौरे से पहले लोगों को धमकियां देकर मजबूर करता है कि उनकी औरतें और जवान बेटियां खलीफा पर फूलों की पत्तियां फेंकें। उसके दौरों पर खजाने की वो रकम तबाह की जाती है जो हमें सल्तनत इस्लामिया के दिफा और तोसी के लिए और कौम की फलाह बहबूद के लिए दरकार है। इसके अलावा इस पहलू पर भी गौर करो कि हमें मिस्री अवाम पर, यहाँ के ईसाइयों और दीगर गैर मुस्लिमों पर यह साबित करना है कि इस्लाम शहनशाहों का मजहब नहीं, ये अरब के सहराओं के गडरियों, किसानों और शुतरबानों का सच्चा मजहब है और ये इंसान को इंसानियत का वो दर्जा देने वाला मजहब है जो खुदा को अजीज है। शद्दाद ने कहा, यह भी हो सकता है कि खलीफा के खिलाफ कार्रवाई करने से आपके खिलाफ ये बहतान तराशी होने लगे कि खलीफा की जगह आप खुद हाकिम बनना चाहते हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, सच की हमेशा मुखालिफत हुई है और होती रहेगी। आज झूठ और बातिल की जड़ें सिर्फ इसलिए मजबूत हो गई हैं कि मुखालिफत और मुखालिफाना रद्द अमल से डर कर लोगों ने सच बोलना छोड़ दिया है। हक की आवाज सीनों में दब कर रह गई है। शाहाना दौरों ने और शहनशाहियत के इजहार के ओछे तरीकों ने रियाया के दिलों से वो वक़ार खत्म कर दिया है जो कौम का तुर्राए इम्तियाज था। अवाम को भूखा रख कर और उन पर जबरदस्ती अपनी हुक्मरानी ठूस कर उन्हें गुलामी की उन जंजीरों में बांधा जा रहा है जिन्हें हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा था। हमारे बादशाहों ने कौम को उस पस्ती तक पहुंचा दिया है कि ये बादशाह अपनी अय्याशियों की खातिर सलीबियों से दोस्ताना कर रहे हैं, उनसे पैसे मांगते हैं और सलीबी आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत इस्लामिया पर काबिज होते चले जा रहे हैं। आपने शद्दाद मुखालिफत की बात की है, हमें मुखालिफत से नहीं डरना चाहिए। सुल्तान अयूबी के नायब सालार अल नासिर ने कहा, काबिल सद एहतराम अमीर, हम मुखालिफत से नहीं डरते। आपने हमें मैदान जंग में देखा है। हम उस वक्त भी नहीं डरे थे जब हम महासरे में लड़े थे। हम भूखे और प्यासे भी लड़े थे। सलीबियों के तूफान हमने इस हालत में भी रोके थे जब हमारी तादाद कुछ भी नहीं थी। मगर मैं आपको आपकी ही कही हुई एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। आपने एक बार कहा था कि हमला जो बाहर से आता है उसे हम कलील तादाद में भी रोक सकते हैं, लेकिन हमला जो अंदर से होता है और जब हमला आवर अपनी कौम के अफराद होते हैं तो हम एक बार तो चौंक उठते हैं और सुन हो जाते हैं कि या खुदाए जुल जलाल ये क्या हुआ। काबिल सद एहतराम अमीर मिस्र, जब मुल्क के हाकिम मुल्क के दुश्मन हो जाएं तो आपकी तलवार न्याम के अंदर तड़पती रहेगी, बाहर नहीं आएगी। सुल्तान अयूबी ने कहा, आपने दुरुस्त कहा अल नासिर, मेरी तलवार न्याम में तड़प रही है। ये अपने हाकिमों के खिलाफ बाहर नहीं आना चाहती। मेरे दिल में कौम के हुक्मरानों का हमेशा एहतराम रहा है। मुल्क का हुक्मरान कौम की अजमत का निशान होता है, कौम के वक़ार की अलामत होता है। लेकिन आप सब गौर करें कि हमारे हुक्मरानों में कितनी कुछ अजमत और कितना कुछ वक़ार रह गया है। मैं सिर्फ खलीफा अल आजिद की बात नहीं कर रहा। अली बिन सुफियान से पूछो, इसका महकमा मूसल, हल्ब, दमिश्क, मक्का और मदीना मुनव्वरा की जो खबरें लाया है वो ये हैं कि खिलाफत की तायुश परस्ती की वजह से जहाँ जहाँ कोई अमीर और हाकिम है वो वहाँ का मुख्तार कुल बन गया है। सल्तनत इस्लामिया टुकड़ों में बंटती जा रही है। खिलाफत इस कदर कमजोर हो गई है कि उसने उमरा और हुक्काम को जाती सियासतबाजियों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैं इस खतरे से बेखबर नहीं कि कौम के बिखरे हुए शिराजे को हम जब यकजा करने की कोशिश करेंगे तो ये और बिखरेगा, हमारे सामने पहाड़ खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं घबराऊंगा नहीं और मुझे उम्मीद है कि आप भी नहीं घबराएंगे। मैं आपके मशवरों का एहतराम करूंगा, लेकिन मैं आइंदा खलीफा के बुलावे पर सिर्फ उस सूरत में जाऊंगा जब कोई जरूरी काम होगा। फौरी तौर पर मैं खुतबे से खलीफा का नाम और जिक्र निकलवा रहा हूँ। सबने सुल्तान अयूबी के इस इक़दाम की हिमायत की और उसे अपनी पूरी मदद और हर तरह की कुर्बानी देने का यकीन दिलाया।
खलीफा अल आजिद उस वक्त अपने एक खुसूसी कमरे में था जब कासिद ने उसे बताया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा है कि अगर कोई जरूरी काम है तो मैं आ सकता हूँ, वरना मैं बहुत मसरूफ हूँ। खलीफा आग बगूला हो गया। उसने कासिद से कहा कि रज्जब को मेरे पास भेज दो। रज्जब उसके हिफाजती दस्ते का कमांडर था, जिसका ओहदा नायब सालार जितना था। वो मिस्र की फौज का अफसर था। उसे खलीफा के बॉडीगार्ड्स की कमान दी गई थी। उसने कसर खिलाफत और खलीफा के हिफाजती दस्तों में चुन चुन कर सूडानी हबशियों को रखा था। वो सुल्तान अय्यूबी के मुखालिफिन में से और खलीफा के खुशामदियों में से था। उस वक्त खलीफा के उस खुसूसी कमरे में उम्मे अर्रारा मौजूद थी। जब कासिद सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब लेके आया था, उसने खलीफा से कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी आपका नौकर है, आपने उसे सर चढ़ा रखा है, आप क्यों नहीं उसे माजूल कर देते? क्यों नहीं अपने सिपाही भेजकर उसे हिरासत में यहाँ बुलवा लेते? खलीफा ने गुस्से के आलम में कहा, इसलिए कि इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। फौज उसकी कमान में है, वो मेरे खिलाफ फौज इस्तेमाल कर सकता है। इतने में रज्जब आ गया। उसने झुककर फर्शी सलाम किया। अल आजिद ने गुस्से में कांपती हुई आवाज में उसे कहा, मैं पहले ही जानता था कि ये कमबख्त खुद सर और सरकश आदमी है, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी। मैंने उसे बुलाया तो ये कहकर आने से इनकार कर दिया कि कोई जरूरी काम है तो आऊंगा, वरना आपका बुलावा मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि मेरे सामने जरूरी काम पड़े हैं। गुस्से में बोलते बोलते उसे हिचकी आई, फिर खांसी उठी और उसने दिल पर हाथ रख लिया। उसका रंग जर्द हो गया। इस हालत में कमजोर सी आवाज में कहा, बदबख्त को ये भी एहसास नहीं कि मैं बीमार हूँ। मेरा दिल मुझे ले बैठेगा। मेरे लिए गुस्सा ठीक नहीं। मुझे अपनी सेहत का गम खाए जा रहा है और उसे अपने कामों की पड़ी है। रज्जब ने पूछा, आपने उसे क्यों बुलाया था? मुझे हुक्म दीजिए। खलीफा ने दिल पर हाथ रखे हुए कराहती हुई आवाज में कहा, मैंने उसे सिर्फ इसलिए बुलाया था कि उसे एहसास रहे कि उसके सर पर भी एक हाकिम है। तुम ही ने मुझे बताया था कि सलाहुद्दीन खुद मुख्तार होता जा रहा है। मैं उसे बार बार यहाँ बुलाना चाहता हूँ, उसे हुक्म देना चाहता हूँ ताकि उसे अपने पाँव के नीचे रखूं। ये जरूरी नहीं कि कोई जरूरी काम हो तो ही मैं उसे बुलाऊं। उम्मे अर्रारा ने शराब का प्याला उसके होंठों से लगाकर कहा, आपको 100 बार कहा है कि गुस्से में न आ जाया करें। आपके दिल और आसाब के लिए गुस्सा ठीक नहीं। उसने सोने की एक डिबिया में से निस्वारी रंग के सुफूफ में से जरा सा सुफूफ खलीफा के मुंह में डाला और पानी पिला दिया। खलीफा ने उसके बिखरे हुए रेशमी बालों में उंगलियां उलझाकर कहा, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? सबको मेरी दौलत और रुतबे से दिलचस्पी है। मेरी एक भी बीवी ऐसी नहीं जिसे मेरी जात के साथ कोई दिलचस्पी हो। तुम तो मेरे लिए फरिश्ता हो। उसने लड़की को अपने करीब बिठाकर बाजू उसकी कमर में डाल दिया।